चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में का 2 हमने कल किया था। आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 आई एम गोइंग टू सॉल्व नाउ। सो आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन। Find the combined equation of pair of lines passing through the origin and making equilateral angle with the line y is equal to 3. Making equilateral triangle. So they are passing through the origin and they are making an equilateral triangle with some line. Y is equal to 3 is what kind of line is this? किस तरह का लाइन होगा ये y is equal to 3 बताइए। So if I draw the diagram here, अगर इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं, y is equal to 3, this is the line y is equal to 3। इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल करने वाला लाइन चाहिए अपने को। तो हमारा रिक्वायर्ड लाइन कैसे हो सकता है? इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इन एडिशन टू दैट इट हैज टू पास थ्रू द ओरिजिन, मतलब इसमें से एक लाइन ऐसा होगा और शायद दूसरा लाइन इस तरफ होगा। तो मैं बस पहले लाइन की बात करूंगा। एंड व्हाट इज दिस एंगल बाय द वे? 60 डिग्री, क्योंकि दूसरा लाइन इस तरह से होगा ऐसा। मैं पहले एक ही लाइन की बात करूंगा। आई टॉक अबाउट द फर्स्ट लाइन ओनली, इजंट इट? नाउ ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 3, इसका स्लोप कितना है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? इट्स पैरेलल टू x एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन? व्हाट इज द, तो ये जो लाइन है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0x प्लस 3। You can compare this equation with y is equal to mx plus 3c. So what is the slope of this line? What is the slope of any line which is parallel to x-axis? Straight line chapter 11 standard. What is the slope of any line? अरे यार, what is the, okay, what angle it is making with x-axis का slope क्या? What is the slope के formula है? M is equal to tan theta. Theta is the angle of inclination, angle made by the line with the positive direction of x-axis. So what is the angle made by x-axis with x-axis? 0. Theta is equal to 0. So what is the slope of x-axis? Tan 0 मतलब 0. Slope of y-axis tan 90 not defined. ये लिखा है कि आप लोग फॉर्मूले रिवाइज नहीं कर रहे हो क्या स्ट्रेट लाइन चैप्टर के? So what is the slope of x-axis or any line parallel to x-axis? 0. Is that understood? Is that understood? अगला पार्ट चलते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है? मुझे नहीं पता इसका स्लोप क्या है। मैं बोलूंगा ये लाइन L1 है और इसका स्लोप M1 है। नहीं तो ये लाइन को मैं L1 बोलूंगा, इसका स्लोप M1 बोलूंगा, एंड जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है उसको मैं L बोलूंगा एंड उसका स्लोप होगा M. Is this okay? I'll talk about this. Now the angle between them, theta is equal to, what is the acute angle between the two lines? It is 60 degree here. अब 11वीं कक्षा में एक फॉर्मूला देखा था, acute angle between the two lines is given by tan theta is equal to बोलिए मॉड्यूलस ऑफ डैश डैश। करेक्ट, क्या बोले आप लोगों ने? M1 माइनस M2
अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही बोला था ना आप लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो चलिए अब ये m1 है और ये m2 है और theta is equal to 60 degree. Let me substitute here. So this will become tan theta is tan 60 is equal to modulus of m1 is 0 minus m2 is m divided by 1 plus m1 is 0 into m. Now what is tan 60? Correct. 1 upon root 3. Yeah, root 3. Root 3 is equal to minus m1 upon 1. सही है ना? Now I am scared of square root का sign, minus sign, etc. etc. Isn't it? तो मैं इसको square करूंगा. So if I square this, what am I going to get there? 3 is equal to m square. 3 is equal to m square. But auxiliary equation में हम m के जगह पर लिखते हैं y upon x. So when I'll substitute, what is this going to give me? This will become 3 is equal to y square upon x square. Y square upon x square. So what will be the equation here? The equation is given by 3x square minus y square is equal to 0, and that is the answer. बराबर है क्या? 4.1 equation number 7. This is the answer. 3x square minus y square. Is this clear to you all? Is that clear? समझ में आया सबको? एंड आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे ना इसको सॉल्व करने का. गुड गुड, कीप इट अप. राइट, क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट वाला क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 8. If the slope of one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is 4 times the other, m1 is equal to 4 times m2, then show that this is what we have to show. बोलिए कैसे करेंगे? बाय द वे आप लोगों को अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है, क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो एक बता दीजिएगा. देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर m1 plus m2 and what is the formula for m1 m2? Auxiliary equation is given by, correct, bm square plus 2hm plus a is equal to 0. कुछ नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर x को x स्क्वायर से डिवाइड करना होता है हर एक को, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग, पुट y अपॉन x इज इक्वल टू m, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा. नो कंपेयर दिस इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c is equal to 0. So what is the sum of the slopes? Correct, this is minus 2h upon b. And what is the product of the slopes? a upon b. यही बोला ना आप लोगों ने? वेरी गुड, फैंटास्टिक. आपको सारे फॉर्मूले याद है, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा. चलिए अभी आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? m1 के जगह पर 4m2 है ना. आई सब्स्टिट्यूट m1 के जगह पर 4m2. तो इफ आई सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? इफ आई सब्स्टिट्यूट m1 के जगह पर 4m2, so this will become 4m2 plus m2 is equal to minus 2h upon b. सही है, isn't it? कि नहीं है? So what is 5m2 is equal to, 5m2 is equal to minus 2h upon b. बराबर है क्या? Isn't it? So what will be m1 is equal to 4 times m2. That means 4 times minus 2h upon b upon 5b, because ये 5 इधर आएगा. That means what is m1 is equal to
माइनस 8h/5b, दिस इज m1, और यहाँ से मुझे m2 क्या मिला, -2h/5b। लेकिन मुझे मालूम है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अरे मैं सिर्फ ये 2 और 3 इक्वेशन जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। सो आई सब्स्टिट्यूटेड m1 के जगह पर 4m2, आई गॉट m2। फिर यहाँ पर m1 भी फाइंड आउट किया। अब m1 इंटू m2 लिखना है मुझे, तो m1 के जगह पर मैं लिखूंगा -8h/5b, m2 के जगह पर होगा -2h/5b इज इक्वल टू a/b। इसमें से b गेट्स कैंसल, सो व्हाट यू गेट देयर, दिस विल बिकम 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। मैंने ये कहीं पे देखा है, कहाँ देखा है? ओ माय गॉड, मुझे वही प्रूव करना है। इज दिस ओके? समझ में आया सबको? अंडरस्टूड? वेरी इजी। अगला क्वेश्चन जो है, मार्क कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। क्या मार्क करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन आर डी शर्मा, 22.4 वाला क्वेश्चन है ये, सेम आर डी शर्मा का क्वेश्चन है जो इधर है। एचएससी में भी वही क्वेश्चन है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो सेम क्वेश्चन इन आर डी शर्मा, क्वेश्चन नंबर 22.4, मतलब एक्सरसाइज में से ये वाला क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। लेट्स सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस सेम क्वेश्चन इज देयर इन आर डी शर्मा 22.4। हाँ, if one of the lines given by this bisects the angle between the coordinate axis, then show that one of the lines given by this bisects the coordinate axis, then show that। देखिए यहाँ पे if I draw the diagram, the diagram will be, these are the coordinate axis। इसमें से उन्होंने बोला है कि लाइन इज एक्चुअली बाइसेक्टिंग ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है लाइन का मतलब क्या है रे? मतलब ये लाइन कुछ इस प्रकार है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस लाइन? दिस θ1 इज इक्वल टू 45 डिग्री and therefore m is equal to tan theta, that is equal to tan 45 is equal to 1। सही है? ओके। और it can be like this also, it can be like this also, ऐसा भी बाइसेक्ट करता है ना ये, it can bisect like this also। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? it can bisect like this also, the angle between them। तो ये एंगल कितना हो गया फिर? this sin theta is equal to 145 degree, that means what is m is equal to tan of 145, that is equal to tan of 90 plus 45, tan of 90 plus theta,
ऑल सिल्वर टी कप, साइन पॉजिटिव tan नेगेटिव, एंड 90 डिग्री है तो tan चेंजेस टू cot, सो cot 45 माइनस cot 45 दैट इज इक्वल टू -1। तो उसका स्लोप +1 हो सकता है उस लाइन का, या फिर -1 हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इजंट इट? अगर ऐसी बात है तो वो जो लाइन है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय bm square plus twice hm plus a is equal to 0। bm square, m जो है वो या तो +1 होगा या तो -1 होगा। लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर, अगर वो +1 है या -1 है तो आई से +or-1 का स्क्वायर प्लस 2h इंटू +or-1 इज +1 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब मुझे जो प्रूव करना है उसको अगर हम देखते हैं तो ये बन जाएगा b +or-2h plus a is equal to 0, isn't it? I'll transfer this +or-2h on the other side, so this will become a plus b is equal to minus or plus 2h। अब इसको प्लस और माइनस को हटाने के लिए मैं इसको स्क्वायर करूंगा, so this will become a plus b bracket square is equal to प्लस माइनस चला जाएगा, this is 4h square, and I think that's what I want to prove। a plus b bracket square is 4h square, that's what I want to prove। Is that clear? Is that okay? Is that fine? समझ में आया? इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट दिस इज फ्रॉम आर डी शर्मा। ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। इसमें यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। लेट अस टेक दिस फर्दर। Once again I consider this pair of lines. These lines are passing through the origin. I'm going to ask you a few questions here. These lines are passing through origin. Can you tell me what are the equations of these lines? Let me say these are the two lines. ये फर्स्ट लाइन है L1 जिसका स्लोप है M1, तो इसका इक्वेशन होगा y is equal to m1x। यस और नो? आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये जो फर्स्ट लाइन है L1, स्लोप है M1 और इसका इक्वेशन y is equal to m1x। दूसरा लाइन इस तरह से है, ये द सेकेंड लाइन L2 इसका स्लोप है M2 और इसका इक्वेशन क्या होगा? y is equal to m2x, isn't it? बाकी ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो ये जो लाइंस है इनके स्लोप्स m1 और m2 है। इसका इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square is equal to 0. Can you tell me what is the auxiliary equation of this? Correct, it is given by bm square plus 2hm plus a is equal to 0. Can you tell me what is the sum of the slopes here, m1 plus m2, and what is the product of the slopes m1 m2 is equal to? Correct, this is minus 2h upon b and this is a upon b। सही है? Is that okay? So यहाँ पर there I want to find out what is angle between these two lines। मुझे यहाँ पर पता करना है कि भाई ये जो दोनों लाइंस है इसके बीच में एंगल कितना है, tan थीटा। और हमें पता है कि हमने लास्ट ईयर फॉर्मूला देखा था tan थीटा इज इक्वल टू, करेक्ट, क्या बोला आप लोगों ने? मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यस और नो? तो मेरे पास m1 m2 तो है अवेलेबल, लेकिन m1 माइनस m2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं करूंगा फाइंड आउट लाइक m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 एंड m1 m2। इसमें क्या कनेक्शन है? कल ही मैंने आपको इसका कनेक्शन बताया था, याद है? m1 स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 4 m1 m2, करेक्ट ना? सब्स्टिट्यूट करिएगा, क्या मिलेगा मुझे? m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर
मतलब इसका स्क्वायर, सो दिस विल बिकम माइनस चला जाएगा 4h² अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अपॉन बी. फॉर द पर्पज ऑफ एलसीएम आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय बी. तो हमें क्या मिल जाएगा मुझे बताइए. दिस इज गोइंग टू बिकम that is equal to 4 is taken common h square minus ab divided by b square. सही है. this is m1 minus m2 bracket square. if I'll take the square root क्या मिल जाएगा m1 minus m2 is equal to plus or minus 2 square root of h square minus ab. और यहाँ पर तो b square खत्म हो गया, क्या मिलेगा वहां पे. तो मेरे ख्याल से वो बी स्क्वायर को बाहर ही निकाल दीजिएगा, बी बन जाएगा. यस और नो, इजंट इट. अब मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है. आई हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर. क्या मिलेगा. दिस विल बिकम tan थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 मतलब प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b whole thing divided by 1 plus m1 m2. m1 m2 is nothing but a upon b. Now therefore tan theta is equal to क्या मिलेगा बताइए. when I'll take the LCM this will become प्लस और माइनस. ये प्लस और माइनस बेसिकली चला जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस है तो वो प्लस ही रहेगा ना वहां पर. अब isn't it? So I'll remove that. So this will become 2 square root of h square minus ab upon b and whole thing divided by a plus b upon b. तो ये upon b भी कैंसिल हो जाएगा. So what's the formula that we get there? This will become tan theta is equal to modulus of 2 square root of h square minus ab upon a plus b. Is that clear? That's what we get there. Any doubts about that? ये है formula for acute angle between the pair of lines passing through origin. ये नया formula है जो आपको याद रखना पड़ेगा. Is this clear to all? Is that clear? Hello, is this okay? अब एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर ये एक डेरिवेशन है, दे कैन आस्क यू टू डिराइव इट. एग्जाम में ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है. दे कैन आस्क यू टू डिराइव दिस एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ठीक है. और इसका थियरम उन्होंने बोल दिया यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड एज थियरम और उसका ये प्रूफ है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. इज दिस क्लियर? समझ में आ गया. और ये डायग्राम है और ये उन्होंने उसको प्रूव कर लिया. दिस इज द प्रूफ. कमिंग बैक टू, ये हो गया उसका प्रूफ. यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस कंसिडर करेंगे अभी हम. स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस. केस 1, इफ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अब देखिए ये लाइंस पैरेलल है मतलब कैसे होंगे रे. जो ये लाइंस हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये लाइंस अगर कंसिडर करेंगे हम लोग, अगर ये लाइंस, ये उसका एंगल है, एनालाइज कीजिएगा इसको कि या इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग दिस टू लाइंस हियर. अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा. थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0. यस और नो.
I'm analyzing here the cases. Theta is equal to 0, मतलब tan theta is equal to 0, बराबर है क्या? If I say here theta is equal to 0, मतलब tan theta. अब देखिए यहाँ पे tan theta is equal to 0 मैंने अगर सब्स्टिट्यूट किया, if I substitute here tan theta की जगह पर 0, तो ये पूरा का पूरा उधर जाके 0 बनेगा, ये 2 भी डिवाइड करके 0 बनेगा, मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या मिलेगा, h स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. स्क्वायर करने से क्या मिलेगा मुझे, इसका मतलब है मुझे मिलेगा तो थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0? ये लाइंस जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 जब होगा, if I say the lines, तो these lines they will coincide with each other if theta is equal to 0. अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये दो लाइंस एक दूसरे के साथ coincide करेंगे, yes or no? So what we say here, that is L1 and L2 are coincident. कोइंसिडेंट बोल सकते हैं या आइडेंटिकल लाइंस भी उसको बोल सकते हैं हम लोग. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द फर्स्ट केस, ये पहला केस. समझे? दूसरे केस की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड केस नाउ. सेकंड केस कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी. इंफिनिटी मतलब उसका डिनोमिनेटर 0 आएगा, न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर 0 आएगा. अच्छा, इसका डिनोमिनेटर 0 होने का क्या मतलब है बताइए, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 आएगा इसका क्या मतलब है बताइए. a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो मैं स्ट्रेट अवे वही लिखूंगा, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 0. तो दिस इज द सेकेंड केस. क्या बोलेंगे, द सेकेंड केस, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. The lines are perpendicular to each other. Is that clear to all? So यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लाइंस परपेंडिकुलर कब है, when a plus b is equal to 0. So ये दो स्पेशल केसेस है जो हमें यहाँ पे I'll write here these special cases and I'll put it over there. ये है तुम्हारा सेकंड केस, इज द सेकंड केस, और ये है हमारा फर्स्ट केस. पुट इट ओवर हियर. Is that clear? These are the special cases. Any doubts about this? Any doubts about this? h square minus ab is equal to 0, मतलब लाइन्स आर, आप उसको पैरेलल बोलो, कोइंसिडेंट बोलो, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, एंड लाइंस परपेंडिकुलर है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0. और सेकंड एक्सरसाइज पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है. सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड एक्सरसाइज. समझ में आ गया? लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज 4.2. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्या दिया यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the lines represented by this are perpendicular to each other. बहुत सिंपल है. देखिए, I'll compare this with ax square
plus 2hxy plus by square is equal to 0. Compare करने के बाद what is a is equal to k, what is 2h is equal to 4 and therefore h is equal to 2, what is b is equal to minus 4. Is that clear? Lines are perpendicular. अगर lines perpendicular है तो what do you say from that? If the lines are perpendicular, then what do you say from that? अगर lines perpendicular है तो इसका मतलब है a plus b is equal to 0. अभी अभी हमने देखा, तो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा a plus b मतलब k plus 4, k minus 4 is equal to 0 and therefore k is equal to 4 is the answer. Is this clear to you all? That's it. K is equal to 4. हो गया. Next question. Question number 4 sub part 1. 4 में का 1. क्या दिया है यहाँ पे? Find the measure of the acute angle between the lines represented by. I'll compare this with ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Comparing, we get a is equal to 3, 2h is equal to minus 4 root 3, 2 2s are. So h is equal to minus 2 root 3 and b is equal to 3. Okay. Now therefore what we get there, tan theta is equal to modulus of 2 square root of h square minus ab upon a plus b. यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है ना, मैंने पूछा यही फॉर्मूला है ना. तो 2 इंटू बताइए h के जगह पर आएगा माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, सो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस ए बी 9 अपॉन a plus b 3 plus 3 6, so that is equal to 2 3 जा गया, this is root 3 upon 3 and that is equal to 1 upon root 3. तो ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका tan रेशियो 1 upon root 3 होता है? theta is equal to 30 degree, that is equal to pi by 6 radian. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. Any doubts about that? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4 में का 5, सॉरी 4 सब पार्ट 4. सब पार्ट 4. Find the measure of acute angle between these lines. तो इसे मुझे I'll call this as capital A. Okay, इसे मैं बोलूंगा 2h. I'll call this as capital B, so that this is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Confusion टालने के लिए. This is the given equation of pair of lines, isn't it? इसे अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो what is a is equal to this, 2h is this, so a is equal to क्या आ गया, a square minus 3b square. What is 2h is equal to 8ab, 2 4s are, so h is equal to 4ab. And what is b is equal to b square minus 3a square. अगर मुझे इसका एक्यूट एंगल चाहिए, then it is given by tan theta is equal to modulus of 2 square root of h square minus ab upon a plus b upon a plus b, h square minus ab upon a plus b. Is that clear? So this will become, अब मुझे यहाँ पर a plus b और h square minus ab इसके मुझे separately expressions find out करने पड़ेंगे. So I'll find out these expressions separately. So what is h square minus ab?
एच स्क्वायर माइनस ए बी इज गिवन बाय एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4ab का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. Now that is equal to 16a square b square minus this is a square b square. देखिए यहाँ पर कैसे ओपन करेगा ये, like this and like this. So this will become a square b square minus 3a raised to 4 minus 3b raised to 4 plus 9a square b square. तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा देखिए, दिस इज 9, ये कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, 10a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों मिला के. तो 16 में से 10 गया, कितना बचा 6. सो दिस इज 6a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a रेज टू 4 प्लस 3b रेज टू 4. सो आई थिंक आई टेक 3 कॉमन, 3 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे. तो दिस विल बिकम a रेज टू 4 इज a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, that is equal to 3 times a square plus b square bracket square. Is this okay? This is h square minus ab. और दूसरा है a plus b. अब मुझे चाहिए a plus b. a plus b is this plus this, so this is a square minus 3b square plus b square minus 3a square. Is that okay? क्या आएगा बताइए. So this will become a square minus 3a square is minus 2a square minus 2b square. I'll take minus 2 common. तो ये बन जाएगा a square plus b square. I hope this is clear. अब आपने को इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, isn't it? So I'll substitute this h square minus ab and a plus b इसमें. तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू, बोलिए क्या आएगा ये, मॉड्यूलस ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. समझे क्या, डिवाइडेड बाय a प्लस बी मतलब माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बोलिए क्या बचेगा अब इसमें से, व्हाट विल रिमेन. क्योंकि यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. यस और नो. व्हाट रिमेन्स देयर इज ओनली माइनस, माइनस भी नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस साइन, सो इट इज ओनली √3. एंड ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका tan रेशियो √3 है, इट इज 60 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू π/3 रेडियन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझे? चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. So that was 4 mega 4. I'll go for question number 5 now. Question number 5. This is question number 5. Find the combined equation of the lines passing through the origin and each of which making an angle of 30 degree with this line. Question समझ में आ गया? Did you understand the question? मुझे 2 लाइन चाहिए, मैं एक ही लाइन शुरू करता हूँ ढूंढने का, मुझे दूसरा लाइन अपने आप मिल जाएगा. समझे क्या?
मैं एक ही लाइन से शुरुआत करता हूं, मुझे एक लाइन के साथ मैं मेरा खोज शुरू कर देता हूं. सो दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन है समझो वो कुछ इस प्रकार है. दिस इज माय रिक्वायर्ड लाइन एल. ठीक है, दिस इज माय रिक्वायर्ड लाइन जिसका स्लोप है m और उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स. अब मैं गिवन लाइन की बात करता हूं. दिस इज द गिवन लाइन. उस गिवन लाइन को मैं यहां पे दिखा देता हूं कुछ इस प्रकार. दिस इज द गिवन लाइन. समझे? उसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y minus 11 is equal to 0. In short, I'll say this is ax plus by plus c is equal to 0. The slope of this line is minus a upon b, that is equal to minus 3 by 2. समझे? I'll call this slope as m1 and this slope is m. जो भी कुछ है m1 m2 जो भी रहेगा. Angle between these two lines is given to be theta is equal to 30 degree. Theta is equal to 30 degree. So यहाँ पर मैं बोलूँगा angle between any two lines is given by the formula tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. समझे क्या? तो यहाँ पर होगा tan 30 is equal to m1 is minus 3 by 2. या तो फिर मैं इसको m1 बोलूँगा. I'll call this as m1 and this is m2. चलेगा? Isn't it? I'll call this as m1. So it will be m1 is equal to m. So I'll say this is m minus 3 by 2 divided by 1 plus m into minus 3 by 2. So tan 30 1 upon root 3. Tan 30 is 1 upon root 3 is equal to modulus of m plus 3 by 2 divided by 2 minus 3m upon 2. Let's take the LCM. तो ये क्या बन जाएगा? 1 upon root 3 is equal to modulus of 2m plus 3 upon 2 divided by 2 minus 3m upon 2. ये by 2 कैंसिल हो जाएगा. अब जो भी कुछ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर करिएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आएगा 2 minus 3m उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर 3 and this is 2m plus 3 bracket square. Is that understood? ये समझ में आ गया? Is the process of simplification that we have to carry out now. So this is 4 minus 3 to the 6 to the 12m plus 9m square is equal to 3 times 4m square plus 3 to the 6 to the 12m plus 9. Open the brackets. 12m square plus 36m plus 27 and this is 4 minus 12m plus 9m square. Now that is equal to, अब क्या आएगा? ये सब ट्रांसफर करेंगे उधर. तो 12m square minus 9m square is 3m square. 36m plus 12 48m. 27 minus 4 तो 23 is equal to 0. और ये मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया. अब मैं बस m is equal to y upon x लिख देता हूँ तो मुझे पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन मिलेगा. सो दिस इज बेसिकली 3 y square upon x square plus 48 y upon x plus 23 is equal to 0. अब ऑक्सिलरी से मुझे ऑर्डिनरी इक्वेशन चाहिए तो आई विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x स्क्वायर. तो ये क्या मिल जाएगा? 3y square plus 48xy plus 23x square is equal to 0 and that is the answer for question number कौन सा है ये? 5. देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा उसका आंसर. Is it the same answer? 23x square, 48xy, 3y square. Is this okay? Any doubts about that? समझ में आ गया? Alright. हम एक इक्वेशन के तलाश में निकले, दूसरा अपने आप वहां पर आपको मिल गया. Is that clear? I started with only one line, तो दूसरा मुझे अपने आप मिल गया यहाँ पे. You can mark it as a half star problem or a star problem. Is that okay? I'll mark it as a half star problem. Is that clear? By the way, यहाँ पे तीनों 5, 6 and 7 all three are the star problems. आर डी शर्मा लेवल के प्रॉब्लम्स है, तीनों के तीनों अच्छे प्रॉब्लम्स है. ठीक है.